Did you know that the All Arunachal Pradesh Student Union elections are coming closer? Once again, welcome to Eastern Post. This is your reporter, Miss Kuri Tata. Right now, we are here at Gudinotko Pasighat. Today, the candidate Majataku is arriving here at Pasighat to interact with the students and scholars of JNC and Arunachal Pradesh University. So let's have a small bites from the students and well-wishers. So be with us to see the whole program. To give the students of JNC and APU a chance to interact directly with him. This is a good platform to understand his visions, plans, and commitment towards the students and the community. I would also like to extend my heartiest welcome to the esteemed executive members of RGRSF, and I also welcome our respected former APSU, DSU, CBSU and Bango leaders whose presence makes this program more meaningful. I encourage all students to participate actively in interaction and questioning session later in the program. Let us listen carefully, ask thoughtful questions and make this event successful. Once again, I welcome you all and thank you for joining today. Fight between the state government and armed urban youth. आप सब मेरा साथ होगा? And apart from that, when we talk about the reservation policy in the Rajiv Gandhi University, when we talk about the reservation policy in the NARIS and NIT, आज का तारीख में PhD करना चाहने से भी there's only 7.5% reservation. जब जॉब करना चाहेगा वो आज का तारीख में PhD खत्म करने के बाद में लेक्चरर प्रोफेसर्स का जब बात करेगा there's only 7.5% reservation for ST. That is for all India ST. There is no reservation policies in the RGU ordinance. There is no reservation policy in the NARIS and RGU NIT, especially for the APST. What I mean to say, मेरा जो कहना है, the Rajiv Gandhi University, though it may be the central university, NARIS NIT is established in Arunachal Pradesh for the welfare of the students community of Arunachal Pradesh. So, if I'm elected as a president of APSU, I'm going to demand a special reservation policy in the RGU, NARIS, NIT for APST.
If you quotate, don't be a job seeker, be a job giver अगर बोलता है तो स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट का आप बात करता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप बाहर में ट्रेनिंग के लिए भेजता है, बट देयर इज नो प्लेसमेंट। जब यह वापस आता है वो सर्टिफिकेट भी टांगा के रहता है। So I want I mean to say in days to come, if I am elected as a president, also I will talk with the state government, I will have meeting with the state government, especially policy making, so that the unemployment youth, the issues of the unemployment youth should be addressed. मैं ये कहूँगा there should be special package for the unemployment youth, so that कि जो हमारा ये unemployment youth entrepreneurship का आगे जाना चाहेगा तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से मदद करे। ये मैं डिमांड करूँगा, सरकार के साथ पॉलिसी मेकिंग में डिस्कस करूँगा। मजे तको अच्छा था, स्पीच बहुत अच्छा लगा। जैन जी लेट्स गो मजे तको। तो आप जो आज का स्पीच को सुन के ना, आपका दिल में क्या मोटिवेशन आया है? एक मोटिवेशन है कि लीडर हो तो ऐसे ना, जो स्टूडेंट का हक में बात कर सके, बहुत अच्छा लगा हमको। जो मजे तको ऐसे अच्छा बात किया है ना, आज पर्सनली हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मजे तको को, बट उसका स्पीच सुन के लगा है कि हाँ ही इज डिजर्विंग। तो सबसे पहले जितना मैंने यहाँ में आके एक्सपीरियंस किया है, जिस प्रकार जो हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट अपना मजे ताकू जी ने जिस तरह से पावरफुल स्पीच दिया है, उसको सभी ने देख के जो है प्रोत्साहन, एक एनर्जेटिक और एक एनकरेजमेंट आया है ना, तो हम तो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ना। तो जिस तरह से उन्होंने स्पीच दिया, जिस तरह से उन्होंने इंश्योर किया कि आपसू अरुणाचल को किस तरह से आगे लेके जाना है, अगर वो जीत के अगर कुछ इस तरह से करता है तो हमारे लिए, हमारे अरुणाचल के लिए, हमारे जो यंग यूथ के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक एनकरेजमेंट देगा। तो यही मुझे यहाँ आके लगा, और मैं तो ऐसे दिल से चाहता हूँ कि वो जीते ना, उसके बाद मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू, यहाँ में आके एक्सपीरियंस अच्छा लगा और हम दिल से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। आप पहले से मजे तकू को जानता था जो ये कैंडिडेट है? मालूम नहीं था ना। तो अभी आज उसका स्पीच सुन के आपको कैसा लगा? स्पीच पूरा अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। स्पीच पूरा अच्छा है। वोट किसको देगा? लाइक आप सोचना पड़ेगा कि उसका स्पीच सुन के आपको कैसा लगा। हाँ, हम इसका स्पीच को सुन के पूरा अच्छा लगा, तो बस इसको सपोर्ट करेगा, ये सोच रहे हैं बस। तो आप जो है कौन सा कॉलेज से आप? जो मैं JNC पासीघाट से हूँ और मैं हिंदी डिपार्टमेंट फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ। ओके, तो आज आपको जो है ये जो कैंडिडेट जो मजे तकू का ये स्पीच सुन के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हुआ कि जो मुद्दों के बारे में वो जो बात किया है, एक्चुअली ये सब जो स्टूडेंट का नीड्स होता है ना, और हम सभी भी यही चाहते हैं कि अगर हम सभी जो है एक स्टूडेंट लीडर जो हम लोग चुनने से उन मुद्दों के बारे में बात करें जो हम लोग के लिए सपोर्ट होगा ना, हम लोग को जो है वो सब चाहिए होता है ना करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि जिन जिन मुद्दों जो है छूट जाते हैं ना, उन मुद्दों पे जो है बात करके वो जो मीन्स आगे बढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट यूनियन को, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आता है। इसलिए हाँ, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ और होप करती हूँ कि वो ही जीते। और जेएनसी में आप लोग जो कुछ सिचुएशन अभी आप वहाँ में रह रहे तो कुछ सिचुएशन फेस कर रहा होगा, तो उसके बारे में क्या उसने मुद्दा उठाया है आप लोगों के बारे में? जी, एक्चुअली जेएनसी में जो है पीजी कोर्स जो है 2011 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, लेकिन अभी तक देखा जाए तो यहाँ में पीजी का कोई भी कंपाउंड नहीं है। एंड जहाँ तक हॉस्टल की बात किया जाए तो हॉस्टल में भी पीजी का कुछ भी रोल ही नहीं, और पीजी का मीन्स रिजर्वेशन सिस्टम ही नहीं होता है। जब एक्चुअली जेएनसी में यूजी और पीजी दोनों पढ़ने के कारण से ज्यादातर जो है इम्पोर्टेंस जो है पीजी को दिया जाता है, यूजी को दिया जाता है, और पीजी मान लो पीजी का 2-3 सीट मिल जाता है, इसलिए हॉस्टल में भी बहुत तकलीफ होता है वो सब चीज में ना। और स्पेशली जेएनसी में जो है पीजी का खुद का कंपाउंड नहीं है। देखा जाए तो 2011 में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी तक वो सभी है ना प्रॉब्लम जो ना। और हेल्थ एंड हाइजीन का बात किया जाए तो हेल्थ एंड हाइजीन भी बहुत खस्ता है। एक्चुअली कोई भी स्टूडेंट लीडर अभी तक आके मौसम का जो है जायजा नहीं लेता है, इसके कारण से ये भी बहुत तकलीफ होता है ना। और फिर जब क्वालिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, अभी तक देखा जा सकता है कि जेएनसी में ये सब हालत बहुत तकलीफ है ना। इवन यहाँ में जेएनसी में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट है ना पढ़ने के लिए, लेकिन चारों डिपार्टमेंट को जो है क्लासेस भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जब यूजी का क्लासेस खाली होता है तब पीजी को जो है क्लासेस मिलते हैं। इन चीजों के बारे में थोड़ा सुनने के लिए मिले। हाँ, कुछ पीजी के लिए कुछ प्रोविजन जो है वो लोग कर देगा, ऐसे स्पीच में सुनने के लिए मिला था। तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में बात किया गया है। आप जो है कौन सा कॉलेज से है आप? जो हम जो ना जेएनसी से मास्टर कर रहे हैं अभी 3rd सेमेस्टर।
मतलब 4th सेमेस्टर जाने वाला, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ओके, तो आज आप जो है मजे तक जो कैंडिडेट है उसका स्पीच सुन के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, स्पीच जो सुन के ना अच्छा लगा, वही बोलेगा। क्या आप लोग का कुछ जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं आप लोग का कॉलेज में, तो ऐसे कुछ वो जो मुद्दा उठाया है आप लोगों का लेकर? हाँ, जो जेएनसी का बारे का ना, हॉस्टल में खाना नहीं मिलता है बोला, 2 टाइम सिर्फ मिलता है बोला ना, तो ये मुद्दा तो अच्छा लगा सुन के, मतलब खाना नहीं मिलता, 3 टाइम मिलना चाहिए बोल के ना, तो ये मुद्दा तो मुझे तक को इकला नहीं है, हर कोई मतलब जो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट उठा रहे ना, ये मुद्दा को उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे स्टूडेंट ना, तो हम वही बोलेगा। Finally, the interaction program has been concluded between the students and president candidate Mr. Majatako, where he stood up about the issues facing by the Arunachal Pradesh students. So, once again, this is your reporter Ms. Kuritata with camera person Raldo Moyong, Eastern Post.